Hello students, welcome to Sparkle SNEET Masterclass. So in the previous class, we took questions on the entire syllabus and saw how NEET 2026 re-exam is gonna be. We have decoded the NEET mindset and brought questions for you, concepts for you, which are in line with how NEET asks their questions. So in the previous class, we did the entire syllabus. From today's class, we'll be deep diving into chapters. As mentioned in the schedule, today we'll be doing motion in straight line and motion in plane. Both these are very scoring topics, very conceptual, and we'll be deep diving into concepts of these chapters. We'll be seeing and discussing the questions and concepts which the NEET might ask in the NEET 2026 exam. So let's start with the questions. Now, something about the topic first. A body starting from rest travels in a straight line with constant acceleration 2 meter per second square. The ratio of distance covered in first 2 seconds to distance covered in second. So we are asked the ratio of distance traveled in 2 seconds. When they say 2 seconds, it's 0 to 2 seconds. All right. And when they ask us second, it is the time interval between first second and the second. So it's the time interval between first second and the second. So we have different formulas for the students. I hope you know the formulas. So let's write the parameters what are given. So the body starts from rest. Its acceleration is 2 meter per second square. Now the distance traveled in 2 seconds will be found by ut plus half at square. Initial velocity is 0. So half of 2 into 2 square it will become. So it will be 4 meters. So this is our first answer. Then we have to find the distance traveled in second. So for nth second, the formula is u plus a by 2 into 2n minus 1. Initial velocity is 0. Acceleration is 2 upon 2. 2 into 2 minus 1. So it will become 3. This is our second answer, and we have to find the ratio. The ratio will be 4 by 3. So this type of question was asked previously in NEET. It was in the form of nth seconds and n seconds. The concept was the same. The displacement in nth second formula is NEET favorite. If you see the PYQs, you'll get this question many times. So you should practice a lot of problems on this concept. Let's move on to the third question. A train 150 meter long is going towards north direction at a speed 12 meter per second. A parrot flies at speed 3 meter per second towards south direction parallel to the railway tracks. Time taken by the parrot to cross the train is. So it's also a standard question. You might have seen a similar question in your book or your package. So we have a train. Its length is 150 meters and it is moving towards, let's say, north. So I'm taking this direction as north and this direction as south. We also have a bird that is moving towards south with speed 3 meter per second. All right. So when two bodies are given in a question, we know that it's a relative motion question if they are moving simultaneously, right? So in this question, we'll observe the motion of one body with respect to the another body. Okay, so let's do it. So what we do over here, we stop the train. Let's stop the train. See the motion relative to the train. So if we stop the train or see the motion of the bird relative to the train, the speed of the bird relative to the train would be like this. We will stop the train and add its velocity in opposite direction to the bird. So velocity of this bird with respect to train will become 15 meter per second. All right. And to cross the train, this particular bird has to go here from here. So it has to travel 150 meters. So time taken by it will be 150 upon 15. So it will be 10 seconds, students.
So it's an easy question, but you have to do it with relative velocity. You have to identify that, you have to apply the concept of relative velocity here. And relative velocity में बच्चों बहुत कुछ ज्यादा नहीं करना होता. दो बॉडी साइमल्टेनियसली मूव कर रही होती हैं, उसमें से एक बॉडी को हम रुका हुआ मान लेते हैं, उसके वेलोसिटी को जिस बॉडी को देख रहे हैं उसमें ऑपोजिट करके ऐड कर देते हैं, and we get the relative velocity and we find the parameter r. So it's a very easy question, just practice needed होती है इनके लिए. तो आई होप आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे एंड करेंगे होपफुली. ओके, yeah, let's moving on to the next question. A car moves in a straight path such that its displacement at time t is given by s is equal to t cube minus 6t square plus 3t plus 4, the velocity when acceleration is 0. So we have to find the velocity, and when we have to find the velocity when acceleration is 0. So first we have to find the acceleration from over here. So if we differentiate it, ds by dt, will get the velocity, and it will be 3t square minus 12t plus 3. To find the acceleration, we'll have to differentiate it once more. So we differentiate it again, it will become 6t minus 12. Now we have to find the velocity जब acceleration 0 है. तो हम acceleration को 0 पुट कर देते हैं, वो टाइम निकाल लेते हैं जब acceleration 0 है. तो I'll get 2 seconds from here. Now to find the velocity, I'll put this value in the velocity expression. तो मैं velocity की expression में रख देता हूं ये value. It will become 2 का square minus 12 into 2 plus 3. So it will become 3 into 4, 12 minus 24 plus 3. So it will come out to be minus 9 meter per second. So this will be my velocity when acceleration is 0. इसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं क्वेश्चन में, इसका उल्टा भी पूछ सकते थे. फाइंड द एक्सेलरेशन व्हेन वेलोसिटी इज 0. तो यू हैव टू डू द सेम थिंग. वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को 0 से इक्वेट करके वो टाइम निकाल लो जब वेलोसिटी 0 है, एंड फिर वो टाइम हम एक्सेलरेशन की इक्वेशन में रखेंगे. तो इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, बट नीट ने ऐसा क्वेश्चन पहले भी पूछा है एंड वो आगे भी पूछ सकते हैं. ओके, तो आई होप ये डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन से आप नहीं डरते होंगे. बहुत सारे बच्चों को फोबिया होता है इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन का, बट लेट मी टेल यू, ये बिल्कुल इजी होता है. नीट क्रैक करने के लिए आपको t की पावर n का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आना चाहिए. मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को कोई डिफिकल्टी होगी. आपको बहुत कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन नहीं पूछे जाते हैं बच्चों एग्जाम में. आपको बहुत बेसिक इस तरह का इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन पूछा जा सकता है. तो आप अगर डरते हैं इस चीज से, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है एटलीस्ट ये याद करके चलें, इस तरह के सिंपल प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस कर लें ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं. इफ अ स्टोन व्हेन रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट travels half of its total path in last second of its fall, height from which it falls nearly is. So see, मैंने बताया है आपको कि जब भी मैकेनिक्स का या फिजिक्स में कोई भी चैप्टर का क्वेश्चन आए जहां पर डायग्राम बनाने की पॉसिबिलिटी हो, हमें वहां पर डायग्राम बनाना है. उससे बहुत सारी चीजें हमारी सॉल्व हो जाती है. हमसे बोला है कि ऑब्जेक्ट को हमने रेस्ट से ड्रॉप किया है, ठीक है. टोटल हाइट लेट से उसका h है जो कि हमें निकालना है. हमने एज्यूम कर लिया कि इट्स h. नाउ वी आर टोल्ड दैट इट ट्रेवल्स हाफ ऑफ द टोटल पाथ इन द लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स फॉल. ओके, तो हम मान लेते हैं कि लेट्स से इट इज फॉलिंग फॉर लाइक टाइम t. ओके, एंड इन लास्ट 1 सेकेंड, in last 1 second it is falling h by 2 height, it is told 1 second, and rest h by 2 it might be traveling in the time t minus 1 seconds. Okay, the total time is t. In the last 1 second it is traveling h by 2, so the remaining time is t minus 1, and in that also it is traveling h by 2. So let's start with the equation of motion. So s is equal to ut plus half at square. We know that object is falling from rest. Applying for this parameters, so displacement is minus h, initial velocity is 0, minus of half into g into t square. So from here we get h is equal to half of gt square. This is our first equation. Now again writing the same equation for these parameters. So displacement is minus of h by 2.
minus of half of g into t minus 1 whole square. So from here we'll get h by 2 is equal to half of g into t minus 1 whole square. So these are the two equations that we get. Now what we do, let's divide these two equations. So we divide 1 and 2. So what we'll get here, let's see the equations. So see, this h and h will get cancelled. Half g and half g will get cancelled. So what I'll get from here is 2 is equal to, and from here 2 upon 1, and it will be t square upon this 2 goes over here, and t square upon t minus 1 whole square. T square upon t minus 1 whole square. Okay, so from here I can write that 2 into t minus 1 whole square is equal to t square. Now what I do, let's take a square root. So it will be root 2 times of t minus 1 is equal to t. Now solve it. So it will become root 2t minus root 2 is equal to t. And we solve it, it will become root 2 upon root 2 minus 1. So this is the time in which it is falling the entire height. All right. If we rationalize it, we'll get root 2 plus 1, and here we'll get root 2 plus 1. So let's write it as root 2 into root 2 plus 1, and this will become 2 minus 1. Okay, so the total time that we are getting is 2 plus root 2 seconds. All right. Now we have to find the total height. So total height, we can go for the first equation over here. So h is equal to half of g into t square. So h will become half of g into 2 plus root 2 whole square. Okay. So we have to solve this thing. All right. तो आई होप ये क्लियर होगा सब लोगों को. तो इसमें बहुत कुछ नहीं करना होता हमको. इसमें केवल हमको जो लास्ट सेकंड हमने माना है उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बना के चीजें करनी होती है. ऑलराइट, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आई विल गेट अराउंड 58 मीटर्स. ऑलराइट, सो अप्रोक्सीमेटली हमसे पूछा गया है 57.11. I'll get exactly. It will be 58 meter. So let's move on to the next question. It was a good question. ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं आपसे कि लास्ट सेकंड में वो मान लीजिए 5/9 चल रहा है टोटल डिस्टेंस का, या फिर 6/17 ऑफ द टोटल डिस्टेंस चल रहा है. इस तरह के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं. तो प्लीज इस तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए. इट्स अ गुड क्वेश्चन है. स्टैंडर्ड क्वेश्चन नीट का जो रिसेंट ट्रेंड देखा गया है उसमें जनरली जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आते हैं, जो कॉमन होते हैं, जो बुक्स में जनरली गिवन होते हैं, एनसीईआरटी में गिवन है, उस तरह के क्वेश्चंस नीट पूछ रहा है. तो उन क्वेश्चन पे हमें एम्फसाइज करना है. A particle is projected vertically upwards from the ground with an initial speed of 57 meter per second. If the acceleration due to gravity is taken to be equal to 10 meter per second square, the displacement of the particle in the 6th second of the motion is. Again, displacement in nth second का उनने हमसे क्वेश्चन पूछा है. तो फॉर्मूला फॉर nth second is u plus a by 2 into 2n minus 1. डिस्प्लेसमेंट निकालना है 6 सेकंड में. इनिशियल वेलोसिटी 57 होगी, प्लस होगी क्योंकि ऊपर वाले डायरेक्शन को अपन पॉजिटिव ले रहे हैं, नीचे वाले डायरेक्शन को नेगेटिव ले रहे हैं. एक्सेलरेशन को मैं नेगेटिव लिखूंगा तो -10/2 into 2 into 6 minus 1. So it will become 57 minus 5 into this will be 11. So it will come out to be 2 meters. All right. So again, easy question, direct formula का application है, but this formula is very important. Displacement in nth second. When Rahul walks up a stationary escalator, then he takes 20 seconds to reach the top. While when he walks up a moving escalator, he takes 10 seconds to reach the top. Time taken by him to reach the top when he stands still on the moving escalator. Okay, so let's draw the diagram for it. So I have an escalator over here. We are given like 3 conditions. So this is my escalator.
So in the first case, Rahul is walking on a stationary escalator. So escalator speed is 0 and Rahul is walking with some speed, let's say VR. So let's say the distance is d. So time taken will be distance upon speed, so it will be VR. This will be our first equation for this part. Now coming to the second part, while when he walks up a moving escalator, so escalator is also moving with VE, let's say Rahul is also moving with VR, and in this case it takes 10 seconds. So 10 will be equal to distance upon VR plus VE. All right, this will be our second equation, bachcho. Third part, the time taken by him to reach the top when he stands still on the moving escalator. So escalator is moving and Rahul's speed is 0. VR is 0. So in this case, we have to find the time. So time taken over in this case would be d upon VE, and this will be our third equation. So we have to compare all our equations like this. So from here, we can write, let's come to the next page. VR, we can write as d upon 20 from this first equation. From here, we can write VR plus VE is equal to d upon 10. VR plus VE is equal to d upon 10. And from the third equation, we can write that VE will be equal to d upon t. Or we can simply take it like this. We can find the value of V from over there and solve it. So you put the value of VR over here. So d by 20 plus VE will be equal to d by 10. So VE will be equal to d by 10 minus d upon 20. So it will become d upon 20. Now, the time in the third case, the time will become d upon VE. So it will be d upon VE value is d upon 20. So it will be 20 seconds. All right. So this is how you solve this question. इसमें थोड़ा relative velocity का concept है, though we are seeing the situation from ground only, but जब दोनों चल रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि we'll have to add VR and V with respect to ground. The velocity will be VR plus VE. All right. So move on to the next question. This is a standard question. आप इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं, बट वो बहुत बार कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो इसलिए मैंने आपको सॉल्व करके बताया है. एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ. सी, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये बहुत बच्चे गलती करते हैं इसमें. गलती क्या करते हैं कि 80 ग्राफ देखते ही वो बोलते हैं कि एरिया इज इक्वल टू वेलोसिटी. ऐसा नहीं होता है बच्चों. जो एरिया ऑफ 80 ग्राफ होता है वो हमें चेंज इन वेलोसिटी देता है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल देता है, ना कि वेलोसिटी देता है. ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन का पॉइंट है. यहाँ पर बहुत बच्चे मार्क्स लूज करते हैं, जल्दीबाजी में मार्क्स लूज करते हैं. आपको जब भी 80 ग्राफ दिखता है बच्चों, यू हैव टू राइट दैट एरिया इज वी फाइनल माइनस वी इनिशियल. ऑलराइट. तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ग्राफ के क्वेश्चन बहुत स्कोरिंग भी होते हैं, इंपॉर्टेंट भी होते हैं, हर साल पूछे जाते हैं. तो हमसे बोला गया एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऑफ पार्टिकल इज शोन. If the particle starts with velocity 2 meter per second, so initial velocity is given as 2 meter per second, then its velocity at 4 meter per second is. So let's find the area under the graph till 4 seconds. So see, this one, this is a rectangle. So height is 4 and length is 2. So the area over here will be 8. This area will be 4 and this area will be half into base is 2 and height is also 2. So it will be 2. So the total area will be 8 plus 4 plus 2 is equal to V final minus 2. So V final will become how much? This will become 14 and 16 meter per second. So अगर आप केवल ले लेंगे कि वेलोसिटी के बराबर है तो you'll get 14 as the answer and it will be incorrect. All right. आपका आंसर 16 होगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 2 दे रखी है. तो इसमें ध्यान रखना है, v फाइनल माइनस v इनिशियल एरिया होगा, ना कि वेलोसिटी होगा. ऑलराइट. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. A boy standing at the top of a tower 20 meter high throw a ball
with speed 10 root 5 vertically upwards. The ball will hit the ground with a speed of. So let's draw the diagram again. So let's say the height of the tower is h. 10 root 5 से बॉल को फेंका है एंड हमें जब ये ग्राउंड पर वापस आ जाएगी तब इसका स्पीड निकालना है. ओके, द हाइट ऑफ द टावर इज गिवन एज 20 मीटर्स और एच विल बी 20 मीटर. सो इसमें हमें मल्टीपल इक्वेशंस लगाने की जरूरत नहीं है, हम एक इक्वेशन से निकाल सकते हैं. थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. फाइनल वेलोसिटी हमको निकालनी है बच्चों. इनिशियल वेलोसिटी 10 रूट 5 होल स्क्वायर है 2 इंटू एक्सेलरेशन इज -10 इंटू डिस्प्लेसमेंट. आप ध्यान रखिए डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, ये इनिशियल पोजीशन थी या फाइनल पोजीशन थी, तो डिस्प्लेसमेंट इज -20. ये बहुत बार बच्चे मिस कर देते हैं. ऐसा नहीं है कि हाइट पर है तो हमें उसको 20 लेना है, हमने हाइट से फेंका है उसको ऊपर एंड फाइनल पोजीशन जो है वो नीचे है. जब भी फाइनल पोजीशन नीचे होगी इनिशियल पोजीशन से तो डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव लेना होता है. तो ये जो चीज है हमारी ये हो जाएगी 500 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 400. तो v स्क्वायर का वैल्यू आ गया 900 एंड v का वैल्यू आ गया 30 मीटर पर सेकेंड. ऑलराइट, सो अगेन अ इजी क्वेश्चन बट आपको साइन का ध्यान इसमें रखना पड़ेगा. ऑलराइट, two railway tracks are running parallel in east-west direction. Along one track, a train moves with velocity 30 meter per second from west to east, while along the second track, the train B moves with 45 meter per second east to west. The velocity of B with respect to A. So we have two trains. One is going with speed 30 meter per second and another train is moving in the opposite direction with speed 45 meter per second. So this is my A and this is my B. हमें पूछा है velocity of B with respect to A, तो velocity of B with respect to A is VB minus of VA. ये सारा वेक्टर फॉर्म में हमको लिखना होता है. अब हमसे बोला है कि assume west to east as positive direction. So west to east कौन सी ट्रेन जा रही है? ट्रेन along one track, train A moves with velocity 30 meter per second from west to east. So ये वाली जो वेलोसिटी है इसको हम पॉजिटिव लेंगे. ऑलराइट, एंड ट्रेन बी का जो वेलोसिटी है उसको हम नेगेटिव लेंगे. ऑलराइट, तो VB माइनस VA या वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू ए हो जाएगा माइनस ऑफ 45 माइनस 30. वो तो पॉजिटिव ही है तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 75 मीटर पर सेकेंड. सो साइन का ध्यान रखना पड़ेगा इसमें बच्चों, बाकी सिंपल सा फॉर्मूला है. All right. Next question. A train is moving due east and a car is moving due north, both with same speed 20 meter per second. The velocity of the car observed by the passenger in the train is. ये सेम क्वेश्चन है लेकिन इसमें अब डायरेक्शन और चेंज कर दी है. ये ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं जा रहे, एक ईस्ट में जा रहा है एक वेस्ट में जा रहा है, तो इसमें हमको डायग्राम बहुत प्रॉपरली बनाना पड़ेगा. तो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम एंड ड्रॉ द डायरेक्शंस एज वेल. सो दिस इज माय नॉर्थ एंड दिस इज माय ईस्ट. नाउ द ट्रेन इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट. नाउ दिस इज माय ट्रेन एंड इट इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट विथ 20 मीटर पर सेकेंड. अ कार इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ विथ द सेम स्पीड. जब इस तरह से क्वेश्चंस दिए हों बच्चों तो आई कैप जे कैप का सहारा ले लेना चाहिए. इट्स वेरी यूजफुल एंड इट्स वेरी इजी टू सॉल्व विद आई कैप एंड जे कैप. सो हमसे पूछा है वेलोसिटी ऑफ द कार एज ऑब्जर्व फ्रॉम द पैसेंजर इन ट्रेन, और वी कैन से वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन. सो इट विल बी वेलोसिटी ऑफ कार माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन. नाउ व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ कार? लेट्स से टेक इट एज जे कैप जो स्टैंडर्ड नोटेशन है एंड टेक इट एज आई कैप. So velocity of car will be 20 j cap minus 20 I cap. So the magnitude will come out to be 20 root 2 meter per second. And direction कैसे निकालेंगे बच्चों? तो यहां पर फिर से हम हमारी डायरेक्शन बनाने के लिए देख लेते हैं. तो 20 तो j cap है, ऑल राइट,
एंड -20 आई कैप है, मतलब इस डायरेक्शन में होगा। तो जो हमारा वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू टी का डायरेक्शन आया है वो ये डायरेक्शन आएगा। अब ये डायरेक्शन ये नॉर्थ है और ये क्या है वेस्ट, तो डायरेक्शन आएगा हमारा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, उनके बीच में है क्योंकि ये 45 डिग्री का एंगल होगा, तो ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है। तो 20√2 इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। आई होप ये समझ आया होगा, ये डायरेक्शंस में कंफ्यूज नहीं होना है। इस तरह का क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, ये बहुत लाइकली है कि एग्जाम में आ सकता है। If the initial velocity of the particle moving in a straight line is 5 meter per second and its acceleration is given as a is equal to 2t cube, the speed of the particle at t equal to 2 seconds. अब बच्चों इसमें एक जो गलती होती है वो ये कि हम इस एक्सेलरेशन जो हमको दिया है इसकी वैल्यू निकाल कर t इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे उसको इक्वेशन ऑफ मोशन में फिट करने की कोशिश करते हैं, बट यहां पर इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगाया जा सकता क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। इक्वेशन ऑफ मोशन तभी हम यूज कर पाएंगे जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो हम क्या यूज करेंगे, डिफरेंशिएशन यूज करेंगे। तो a इज इक्वल टू dv अपॉन dt होता है, हमें पता है, और a का वैल्यू दे रखा है 2t क्यूब, तो dv का वैल्यू मैं लिख सकता हूं 2t क्यूब dt। अब मैं इंटीग्रेट कर दूंगा दोनों साइड, लिमिट्स मुझे दी हुई है, t इक्वल टू 0 पर इनिशियल वेलोसिटी मेरी 5 मीटर पर सेकेंड है, कुछ t इक्वल टू 2 सेकेंड्स पर मुझे वेलोसिटी निकालनी है जो कि लेट से मैंने बोल दिया अभी। अब मैं इंटीग्रेशन dv करूंगा तो मुझे v मिलेगा और मेरी लिमिट्स हो जाएंगी 5 एंड v। इंटीग्रेशन 2t क्यूब का इंटीग्रेशन करूंगा तो वो हो जाएगा 2t की पावर 4 अपॉन 4 एंड लिमिट हो जाएगी 0 से 2 तक। तो ये हो जाएगा v माइनस 5 इज इक्वल टू 2 का वैल्यू लिमिट पुट करूंगा तो 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा मेरा 16/2 माइनस 0। तो यहां से आ जाएगा v माइनस 5 इज इक्वल टू 8, v इज इक्वल टू 13 मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन बच्चों सिंपल है, आपको इंटीग्रेशन करना है, केवल ये ट्रैप का ध्यान रखना है कि यहां पर इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं यूज करनी है, यू हैव टू यूज इंटीग्रेशन ओवर हियर। आई होप ये क्लियर होगा। अगेन जैसा मैंने बोला था, इंटीग्रेशन t की पावर n का ही पूछा जा रहा है बार बार आपसे। Next question, the position x of a particle is given as 3x is equal to a plus bt cube. Acceleration of the particle, बहुत सिंपल क्वेश्चन, पर इस तरह के क्वेश्चन आप देखेंगे मल्टीपल टाइम्स रिपीट होते हैं। तो x को डिफरेंशिएट करके हमें पता है कि v मिलता है, v को डिफरेंशिएट करके a मिलता है, तो हमें इसको दो बार डिफरेंशिएट करना रहेगा। डिफरेंशिएट करते हैं दोनों साइड, तो 3 इंटू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल, सॉरी 3 इंटू डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू, ए का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा बच्चों, कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन होगा b इंटू 3t स्क्वायर। फिर से हम डिफरेंशिएट करेंगे, दिस विल बिकम v, तो इसको ऐसा भी लिख सकता हूं मैं 3v इज इक्वल टू 3bt स्क्वायर, आपकी ईज के लिए ऑफ अंडरस्टैंडिंग। फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो 3dv अपॉन dt इज इक्वल टू 3b इंटू 2t। ऑलराइट, सो ये dv बाई dt एक्सेलरेशन हो जाएगा, 3 से 3 हम कैंसिल कर सकते हैं, एक्सेलरेशन की वैल्यू 2bt आ जाएगी मेरे पास में। और हमें कब निकालना है, t बराबर 2 सेकेंड्स पे, तो यहां वैल्यू पुट करेंगे तो 4b मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो दिस विल बी अवर एक्सेलरेशन। तो इट्स अ सिंपल क्वेश्चन, आपको केवल डिफरेंशिएट करना है। अगेन डिफरेंशिएशन t की पावर n का ही हमसे पूछा है इसमें भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ थीफ is running away on a straight road in jeep moving with 9 meter per second. A policeman chases him on a motorcycle moving with a speed 10 meter per second, and the instantaneous separation of the jeep and the motorcycle is 100 meter. How long will it take for the policeman to catch the thief? ये इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, इनको हमें रिलेटिव से करना बहुत आसान होता है। ऑलराइट, तो लेट्स से कि जो हमारा थीफ है वो एक जीप में है, तो ये हमारी जीप हो गई। इनमें डायग्राम बनाने से बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन, एंड इट इज रनिंग विथ 9 मीटर पर सेकेंड। नाउ अ पुलिसमैन इज ऑन अ मोटरसाइकिल एंड इट इज मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड।
अभी इनका इंस्टेंटेनियस सेपरेशन जो है वो 100 मीटर्स है। नाउ हमें पता लगाना है कि एट व्हाट टाइम और हाउ लॉन्ग विल द पुलिसमैन टेक टू कैच द थीफ। सो इसमें भी देखो साइमल्टेनियसली दो ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से इसको सॉल्व करना आसान होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस में जनरली हम ये करते हैं कि जो आगे वाला ऑब्जेक्ट होता है उसके रिस्पेक्ट में मोशन को देखते हैं। उसके रिस्पेक्ट में मोशन को देखेंगे तो उसको रोक देंगे हम, और उसकी वेलोसिटी को ऑपोजिट करके हम ऑब्जर्वर या हमारे पुलिसमैन में ऐड कर देंगे। तो विथ रिस्पेक्ट टू द जीप पुलिस का वेलोसिटी हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। नाउ द क्वेश्चन टर्न्स आउट टू बी अ वेरी सिंपल क्वेश्चन कि 1 मीटर ये रुका हुआ है, यहां पर पुलिसमैन 1 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, उसको 100 मीटर ट्रेवल करना है, तो टाइम टेकन विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इट विल बी 100 सेकेंड्स। ऑल राइट, वेरी इजी क्वेश्चन। डायग्राम बना लेंगे, आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। फिजिक्स के क्वेश्चंस को बिना डायग्राम के नहीं करना है बच्चों। नेक्स्ट, a particle moving in positive x direction has initial velocity v naught. The particle undergoes retardation kv square, where v is the instantaneous velocity, the velocity of the particle as a function of time is. तो यहां पर भी देखिए हमें रिटार्डेशन दिया है, रिटार्डेशन दिया है मतलब आपको लिखना पड़ेगा, तो a इज इक्वल टू माइनस ऑफ के वी स्क्वायर है। आपको वेलोसिटी निकालनी है, तो हम a को लिख सकते हैं dv अपॉन dt विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ के वी स्क्वायर। यहां से हम बोल सकते हैं के वी डीवी, और ये वी स्क्वायर को मैं इसके नीचे ले आया, और माइनस के डी टी। इसको इंटीग्रेट करेंगे, क्या लिमिट्स हमें दी हुई है, इनिशियल वेलोसिटी देखिए वी नॉट दी हुई है, तो टी इज इक्वल टू 0 पर मेरी वेलोसिटी बच्चों वी नॉट है। टी इक्वल टू टी टाइम पर मुझे वेलोसिटी निकालनी है, तो लेट्स इंटीग्रेट इट। 1/v² का इंटीग्रेशन कितना होता है, आई होप आपको पता होगा, मैं एक बार करके बता देता हूं आपको। इसको मैं लिख सकता हूं v⁻⁻2 dv लिख सकता हूं मैं। तो इसको मैं अगर इंटीग्रेट करूंगा तो ये आ जाएगा v⁻⁻2+1 अपॉन -2+1। ऑल राइट, तो ये आ जाएगा v⁻⁻1 अपॉन -1। तो इसका इंटीग्रेशन जो बच्चों निकल के आता है वो -1 अपॉन v निकल के आता है, v⁻⁻2 का। तो मैं लिख दे रहा हूं उसको, तो -1 अपॉन v, लिमिट्स हो जाएंगी मेरी v नॉट से लेके v तक, इज इक्वल टू माइनस ऑफ k का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस ऑफ के टी, 0 टू t। ये माइनस और माइनस साइन में कैंसिल कर देता हूं, लिमिट्स पुट कर देता हूं। लेट्स टेक द नेक्स्ट पेज। लिमिट्स पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/v माइनस 1/v नॉट इज इक्वल टू के टी, 1/v इज इक्वल टू 1/v नॉट प्लस के टी। एलसीएम लेंगे तो 1/v विल बी इक्वल टू v naught 1 plus kt into v naught. So from here my v will become v naught upon 1 plus v naught kt. So this will be our answer. So this is also a question of simple integration. आपको इंटीग्रेशन करना है बच्चों। ऑल राइट, सो आई होप ये समझ आया होगा। इस तरह के क्वेश्चंस जरूर प्रैक्टिस करें। जगलर प्रॉब्लम, अगेन अ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन भी हर बुक में दिया हुआ रहता है, एंड इसलिए जरूरी है ये ऐसे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हम जरूर प्रैक्टिस करें। तो अ जगलर मेंटेन्स 4 balls in motion, making each of the ball to rise to a height of 20 meter from his hand. What time interval should he maintain between the throws of successive balls? So आप ये देखिए कि जगलर मान लीजिए कि जब बॉल्स को मेंटेन करता है, मान लो n नंबर ऑफ बॉल्स अगर वो मेंटेन कर रहा है, तो उसमें कॉन्सेप्ट ये होता है कि हर 2 बॉल के बीच का जो टाइम होता है थ्रो का वो सेम होना चाहिए, वो रेगुलर इंटरवल्स पे उसको थ्रो करनी होती है। तो ये हर 2 बॉल्स के बीच का जो टाइम इंटरवल होता है वो कितना होता है, बराबर होता है। अब मान लो कि यहां पर 4 बॉल्स वो मेंटेन कर रहा है, तो टोटल इस बॉल को फेंकने के कितने टाइम बाद ये बॉल वापस यहां पर आ जा रहा है, 4t टाइम बाद आ जा रहा है। ऑलराइट, मैक्सिमम हाइट रीच्ड ये वाला है। तो अगर मान लो बच्चों इसमें n बॉल्स होती तो कितना टाइम लगता है, nt टाइम, nt टाइम लगता है। मैं जनरल फॉर्मूला आपको बता दे रहा हूं ताकि आपको आगे भी ये चीज याद रहे। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो है, अगर मान लो उसने u स्पीड से फेंका है, तो जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट n बॉल्स को मेंटेन करने के लिए होगा वो nt होगा बच्चों। सो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट to maintain
n बॉल्स, वो निकल के आएगा nt, और वो किसके बराबर हो जाएगा बच्चा, 2u/g के बराबर। तो एक इक्वेशन तो हमें ये ध्यान रखनी होती है, ऑलराइट। और हमें ये पता है अगर उसको u स्पीड से फेंका है और मैक्सिमम हाइट h हो जा रहा है तो h इज इक्वल टू u² / 2g होगा। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन से ये प्रॉब्लम हमेशा सॉल्व हो जाता है। ठीक है, इन जनरल इक्वेशन से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये डायग्राम से मैंने एनालॉजी बताया आपको कि 4 बॉल्स ली तो 4t टाइम लगा, 5 बॉल्स लेता तो 5t टाइम लग सकता, तो n बॉल्स लूंगा तो nt टाइम लगेगा, ऑलराइट। अब हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है कि हाइट जो है राइज कर रहा है वो 20 मीटर है, तो देखो हाइट हमको दी हुई है तो यहां से u आ जाएगा, तो 20 इज इक्वल टू u² / 2g है, तो यहां से u का वैल्यू भी 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा मेरे पास में। जब मेरे पास में u का वैल्यू 20 आ गया तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि n टाइम्स ऑफ t, 4 बॉल्स मेंटेन कर रहा है तो n का वैल्यू भी हमें गिवन है, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि 4 इंटू टी हमें निकालना है, टी वो इंटरवल है जिसके बीच में बॉल्स को थ्रो किया गया है, दो कॉन्जिक्यूटिव बॉल्स को, 2 इंटू 20/10 हो जाएगा, ऑलराइट। टी की वैल्यू 1 सेकेंड आ जाएगी। तो 1 सेकेंड का इंटरवल होना चाहिए हर दो बॉल्स के बीच में। तो ये जगलर प्रॉब्लम है, इसको ध्यान रखिएगा। इन दो इक्वेशन से ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। एन इज द नंबर ऑफ बॉल्स जो कि मेंटेन कर रहा है, टी इज द टाइम इंटरवल बिटवीन द बॉल्स, एंड यू स्पीड ऑफ थ्रो है। तो एन टी इज इक्वल टू 2u/g एंड एच इज इक्वल टू u² / 2g। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। A particle has initial velocity 2 I cap plus 3 j cap and acceleration 0.3 I cap plus 0.2 j cap meter per second square. The magnitude of velocity after 10 seconds. So it's a very easy question. इसमें वेक्टर फॉर्म में हमको इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है, एंड ये बहुत प्रोबेबिलिटी है कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है v इक्वल टू u प्लस a वेक्टर इंटू टी। फाइनल वेलोसिटी हमको 10 सेकंड के बाद में निकालनी है। इनिशियल वेलोसिटी इज 2 I कैप प्लस 3 j कैप प्लस एक्सेलरेशन इज 0.3 I कैप प्लस 0.2 j कैप इनटू टाइम इज 10, सो इट विल बिकम 2 I कैप प्लस 3 j कैप प्लस 3 I कैप प्लस 2 j कैप, सो इट कम्स आउट टू बी 5 I कैप प्लस 5 j कैप, ऑलराइट। एंड इसका मैग्नीट्यूड बच्चों निकालेंगे हम तो 5√2 मीटर पर सेकेंड आएगा, all right. So it's an important question but very easy question. A boat which has a speed 5 kilometer in still water crosses a river of width 1 kilometer along the shortest path in 15 minutes. The velocity of the river water in kilometer per hour is. रिवर मैन प्रॉब्लम एंड रेन मैन प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स है, दैट्स व्हाट मेक्स देम वेरी इंपॉर्टेंट। नीट का ट्रेंड है वो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स पूछ रहा है, तो हमें ऐसे क्वेश्चंस जो कि हर बुक में अवेलेबल हैं, जिनको स्टैंडर्डाइज किया गया है, उनको सॉल्व करना जरूरी है। तो रिवर मैन प्रॉब्लम से भी बहुत लोग डरते हैं, डरने की जरूरत नहीं है बच्चों, आपको केवल डायग्राम करेक्टली बनाना होता है। इफ यू ड्रॉ द डायग्राम करेक्टली इन रिवर मैन एंड रेन मैन प्रॉब्लम, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो लेट्स से ये रिवर है हमारी और ये इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है वी से, और वो स्पीड ही हमें निकालनी है। इसका रिवर का विड्थ जो है बच्चों वो 1 किलोमीटर है। नाउ अ बोट विच हैज अ स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर in still water crosses a river of width along the shortest path in 15 minutes. अब शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा? ये स्ट्रेट लाइन पाथ जो मैंने बनाया है, I'll draw it in different color ताकि आप उसको और अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाए। ये ब्लैक कलर्ड लाइन वाला जो पाथ होगा ये हमारा शॉर्टेस्ट पाथ है। अब आप इसमें सोचिए, थोड़ा सा कॉमन सेंस है कि अगर आप इस पाथ के अलोंग ही स्विम करने की कोशिश करेंगे या बोट को रो करने की कोशिश करेंगे तो आप क्या आप यहां पहुंच पाएंगे ऑपोजिट पॉइंट पे? नहीं, आप यहां कहीं पहुंचेंगे, ऑलराइट। अगर आपको इस पाथ के अलोंग स्विम करना है या ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंचना है बेसिकली, तो आपको रिवर के फ्लो से ऑपोजिट कोई एंगल बनाते हुए जंप करना पड़ेगा या डाइव करना पड़ेगा या आपकी बोट को रो करना पड़ेगा। तो लेट्स से मैं बोट को रो कर रहा हूं इस डायरेक्शन में, तभी मैं इस पाथ पे जा पाऊंगा अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ और ये ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंच पाऊंगा। लेट्स से थीटा एंगल बना रहा हूं,
तो एक कंपोनेंट ऑफ माय वेलोसिटी अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ या अलोंग द पाथ वाला वो हो जाएगा 5 cos ऑफ थीटा, एंड एक कंपोनेंट ये वाला हो जाएगा 5 ऑफ साइन थीटा। अब हमें पता है कि ये जो विड्थ ट्रैवल कर रहा है वो इस स्पीड से कर रहा है, विड्थ 1 किलोमीटर है एंड टाइम उसमें 15 मिनट्स लग रहा है, तो हम बोल देते हैं कि डिस्टेंस बराबर जो होगा वो स्पीड इनटू टाइम होगा। दिस इज 1 किलोमीटर, स्पीड जो है वो 5 cos थीटा है, एंड टाइम को हम आवर्स में कन्वर्ट कर देते हैं तो 15/60 आवर्स हो जाएगा वो। ऑलराइट, ये हो जाएगा 4 cos थीटा का वैल्यू मेरा आ गया 4/5, तो थीटा बराबर मेरा 37 डिग्री हो जाएगा। तो ये मेरा 37 डिग्री हो गया। अब एक और बात जो इसमें देखने वाली है बच्चों, यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं और यहां पर पहुंच जा रहे हैं, क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बोल दूं, कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की नेट वेलोसिटी भी क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटीज को इक्वेट कर देंगे हम, तभी नेट जीरो होगा। तो 5 इंटू वो हो जाएगा साइन 37 मतलब 3/5, तो वी आर आ जाएगा 3 km/h। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, इसमें फॉर्मूला तो केवल यही लग रहा है। देखो डायग्राम अगर आप बहुत अच्छे से इसका बना लेते हैं तो आपका कभी ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो इसको अप्रोच करने का तरीका भी यही है, जो लोग डरते हैं इससे, आपको इसमें डायग्राम पहले बना लेना है। डायग्राम बनाना सीखो, क्वेश्चन सॉल्व करना, आंसर निकालना अपने आप आ जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। Raindrops are falling with speed v vertically down, and a man is running on horizontal road with speed u. The magnitude of velocity of raindrops with respect to the man is. ये simplest problem है रेन मैन प्रॉब्लम पे। तो देखिए रेन नीचे गिर रही है विद स्पीड v, एंड जो मैन है वो हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे u स्पीड से रन कर रहा है। अब हमसे पूछा है द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ रेन वेक्टर फॉर्म में माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। ऑलराइट, तो वेलोसिटी ऑफ रेन नीचे वाले डायरेक्शन को जे कैप ले लो, इसको आई कैप ले लो, तो वेलोसिटी ऑफ रेन हो जाएगा माइनस वी जे कैप माइनस ऑफ यू आई कैप। तो मैग्नीट्यूड अगर निकालेंगे बच्चों हम, वो कितना आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस यू। तो वेक्टर फॉर्म में इसको कर लेना बहुत आसान होता है। हर बार रेन मैन प्रॉब्लम में यही चीज हमसे पूछी जाती है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, एंड वो ये होता है, हमको वेक्टर फॉर्म में उसको तोड़कर और वैल्यूज लिख देनी है और आंसर निकाल लेना है। इसमें हमसे ये भी पूछ सकते हैं कि इतने एंगल पर दिख रही होगी, तो वो भी हमको यहीं से मिल जाएगा एंगल भी। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। Equation of trajectory of a projectile is given by y is equal to x minus 10x square. Its speed of projection is. बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी दी हुई होती है और कोई पैरामीटर हमसे पूछ लिया होता है, इसमें हमें जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्ट ट्रेजेक्टरी होती है उससे कंपेयर करना होता है। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, इसको एक बार आप देख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, ये क्वेश्चन हमेशा आपको याद रहेगा। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी जो होती है वो एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ऑलराइट, अब हम दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लेते हैं। अब ये देखिए y की जगह y लिखा है, यहां पर x है और यहां पर x tan थीटा है। तो अब x tan थीटा है और यहां पर x है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहां पर 1 मल्टीप्लाइड होगा। तो tan थीटा की वैल्यू मैं कंपैरिजन से 1 लिख देता हूं, तो थीटा का वैल्यू मेरा कितना हो गया? 45 डिग्री। ऑलराइट, अब यहां पर देखो एक्स स्क्वायर है, यहां पर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का कोइफिशिएंट 10 है, यहां पर एक्स स्क्वायर का कोइफिशिएंट ये पूरी वैल्यू है। तो मैं इन दोनों को भी इक्वेट कर देता हूं, तो 10 बराबर हो जाएगा 10 अपॉन जी को 10 लिख दिया मैंने, 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सो 10 से 10 मैंने कैंसिल किया, यहां से मेरी वैल्यू आ जाएगी कि 2u स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस थीटा, थीटा हमें पता है 45 है, यहां वैल्यू पुट कर देंगे, तो 2u स्क्वायर का जो मेरा वैल्यू है, 2u स्क्वायर का जो मेरा वैल्यू है वो आ जाएगा 1 अपॉन 1/√2 होल स्क्वायर। तो ये u की वैल्यू मेरी 1 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। अगेन इजी क्वेश्चन, बट
आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरह से इसको सॉल्व करना है। इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स देखो हमसे पूछ लिए, हमसे एंगल पूछा जा सकता था, स्पीड पूछी जा सकती है, हमसे रेंज पूछी जा सकती है, मैक्सिमम हाइट पूछी जा सकती है। क्योंकि हमारे पास एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है और स्पीड है तो हम सारी चीजें निकाल सकते हैं। तो ये कंपैरिजन वाले क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। सर्कुलर मोशन, अगेन सर्कुलर मोशन एक पेन पॉइंट है बच्चों का, बहुत सारे बच्चों को सर्कुलर मोशन में इशू आता है, लेकिन आप अगर फॉर्मूलाज पे स्टिक करेंगे आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। A particle is revolving in a circular path of radius 200 meter at a speed of 20 meter per second, and its speed is increasing at a rate root 5. So speed is increasing at a rate का मतलब क्या है कि हमें ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का वैल्यू दिया है √5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको यही आइडेंटिफाई करना होता है कि दिया क्या हुआ है, तो एक्सेलरेशन एट दैट इंस्टेंट। अब हमें पता है सर्कुलर मोशन में दो तरह के एक्सेलरेशन होते हैं, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एंड इनका जो नेट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वो होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर। हमको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दिया हुआ होता है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। तो यहाँ पे जिस रेट से स्पीड चेंज कर रही है, इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है, वही हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। तो यहां से ए नेट हमें पता है बच्चों, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन √5 दिया है तो √5 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? वी स्क्वायर अपॉन आर से। तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर अपॉन 200। ऑलराइट, तो ये 400 अपॉन 200 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर देता हूं 2 का स्क्वायर, तो ये ए नेट का जो मेरा वैल्यू है ये आ जाएगा √5 + 4, क्योंकि √9 होगा, या फिर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है। इसमें हमें एटी दिया हुआ है, एसी निकालने के लिए पैरामीटर्स दिए और नेट एक्सेलरेशन पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the ratio of maximum height attained by two projectiles of same masses is 25/9. So maximum heights का रेशियो दे रखा है h1/h2 is 25/9. All right. The ratio of their minimum kinetic energy is 4/9. अब मिनिमम काइनेटिक एनर्जी प्रोजेक्टाइल मोशन में कब होती है ये आपको पता होना चाहिए। अगर हम प्रोजेक्ट करेंगे किसी ऑब्जेक्ट को तो हाईएस्ट पॉइंट पर जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो मिनिमम होती है, और हाईएस्ट पॉइंट पे हमें पता है कि स्पीड कितनी होती है, तो वो होती है u cos थीटा। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी हाईएस्ट पॉइंट पे? तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी ½ m × u cos थीटा होल स्क्वायर। अब उनका रेशियो हमें दिया है k1/k2 बच्चों, हमें दिया है ½ m u cos थीटा 1 स्क्वायर अपॉन ½ m u cos थीटा 2 स्क्वायर। ऑलराइट, u1 और u2 ले लिया मैंने, इसको ½ m से ½ m में कैंसिल कर देता हूं, एंड 4/9 ये रेशियो हमको दिया हुआ है। तो हम बोल सकते हैं कि हो जाएगा u1 cos थीटा 1 अपॉन u2 cos थीटा 2 इज इक्वल टू 2/3। ऑलराइट, ये हमारी एक इक्वेशन आ गई। यहां से हम क्या लिख सकते हैं? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा या u1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1/2g अपॉन u2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2/2g इज इक्वल टू 25/9। तो मैं इसको ये ऐसे भी लिख सकता हूं कि 5/3 विल बिकम इक्वल टू u1 साइन थीटा 1 अपॉन u2 साइन थीटा 2। अब ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई। तो ये दो इक्वेशंस को हम देखो यहां पर लिख देते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना है इसमें। तो अब देखो, हमें साइन थीटा 1 और कॉस थीटा 1 मिल गया, यहाँ पे साइन थीटा 2 और कॉस थीटा 2 मिल गया। इन दोनों इक्वेशंस को हम फिर से लिख देते हैं साथ साथ। तो ये हो जाएगा, 5 मिनट्स एक्सटेंड करेंगे, ये क्वेश्चन कर लेते हैं। सो वी हैव गॉट 5/3 is equal to u1 sin theta 1 upon u2 sin theta 2, एंड यहां पर हमें गिवन है 2/3
इज इक्वल टू U1 cos θ1 अपॉन U2 cos θ2। बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको कैसे करेंगे? एक काम करते हैं, डिवाइड कर देते हैं दोनों। दोनों को अगर डिवाइड कर देंगे तो आप ये देखो हमारे पास क्या मिलेगा, U1 sin θ1, ये वाली चीज ऊपर चली जाएगी, ये वाली चीज यहां चली जाएगी। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं कि U1 sin θ1 अपॉन U1 cos θ1 इंटू U2 cos θ2 अपॉन U2 sin θ2। और ऐसा ही होगा, दोनों को डिवाइड करेंगे तो। और यहां से ये 3 and 3 कैंसिल हो जाएंगे एंड ये 5/2 रह जाएगा। तो अब आप U1 से U1 कैंसिल कर सकते हैं, U2 से U2 कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा tan θ1 इंटू 1 अपॉन tan θ2 इज इक्वल टू 5/2। अब आपको बच्चों रेंज निकालनी है। रेंज कैसे निकालेंगे tan थीटा से? तो हमें यह पता होता है कि H/R इज tan थीटा अपॉन 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ओके, तो यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो H1 अपॉन R1 इज इक्वल टू tan θ1 अपॉन 4। सिमिलरली हम लिख सकते हैं H2 अपॉन R2, H2 अपॉन R2 इज इक्वल टू tan θ2 अपॉन 4। इन दोनों को भी बच्चों हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, इन दोनों को भी डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा H1/H2 इंटू R2/R1 इज इक्वल टू tan θ1 अपॉन tan θ2। तो देखिए ये टर्म बन गई हमारे पास में। ये वाली वैल्यू है हमारे पास, ये वाली वैल्यू है हमारे पास। तो ये R2/R1 का क्या वैल्यू हम निकाल सकते हैं? तो H1/H2 का वैल्यू हम देख लेते हैं, पीछे हमारा 25/9 दिया था बच्चों। तो H1/H2 इज 25/9 इंटू R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू tan θ1/tan θ2 हमने 5/2 ऑलरेडी यहां पर निकाल रखा है। तो इसको भी हम यहां पर पुट कर देते हैं 5/2। यहां से मेरी वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा 5 टाइम्स। तो R1/R2 मेरा हो जाएगा 9/10। तो ये क्वेश्चन अच्छा था, थोड़ा सा लेंदी है। 10/9 उसका रेशियो आ जाएगा, 9/10, 10/9, वॉट एवर द ऑप्शन इज गिवन। सो क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, बहुत सारे मल्टीपल फॉर्मूलाज यूज हो रहे हैं इसमें। इट्स अ गुड क्वेश्चन, तो इसको जरूर प्रैक्टिस कीजिए। सो आई होप कि आप लोगों को ये सेशन इंटरेस्टिंग लगा होगा। हमने वो सारे क्वेश्चंस इस सेशन में डिस्कस करने की कोशिश करी है जो नीट PYQ से अलाइंड है, रीसेंट ट्रेंड्स जो है नीट के उससे अलाइंड है। जो नीट या एनटीए का थॉट प्रोसेस है, वो जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे, वो एक्सपेक्टेशन ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं मीट करते हैं। एंड मैं बहुत होपफुल हूं कि इसमें से कुछ क्वेश्चंस या कोई क्वेश्चन आपको डेफिनेटली आपके री नीट एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो प्लीज इसको प्रैक्टिस कीजिए। असाइनमेंट्स आपको लिंक और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वो असाइनमेंट डाउनलोड करके भी प्लीज 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 सॉल्व कीजिए। इट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू। थैंक यू वेरी मच। अगले सेशन में मिलते हैं।